Hello and welcome to Sports Tonight. मैं हूँ रोहा नदीम and you have joined us once again for our cricketing special episode. As you know, once a week हम try करते हैं कि जितनी भी क्रिकेट की न्यूज़ है, चाहे वो पाकिस्तान में से हो या दुनिया भर में कहीं से भी हो, we bring it for you and we try and unpack within the context of whatever is happening. इस वक्त जो context है वो ये है, if you're a Pakistan cricket fan, well, there is so much for you to look forward to. The men's cricket team on one hand is preparing for the upcoming Asia Cup to be played in the UAE. दूसरी side पे, the women's team is all geared up to participate in the upcoming ICC ODI World Cup. Big challenges for both the teams and of course हमने squads की भी analysis करनी है. Especially the women's team is concerned, हम उनके squad के बारे में भी बात करेंगे. क्या strengths and weaknesses होंगी पाकिस्तान के लिए going ahead into this all-important World Cup. But before we do all of that deeper analysis, which will be in the later part of the show, start हम करेंगे जी news from around the world से. Pakistan have named their 15-member squad for the ICC Women's Cricket World Cup 2025, set to take place from 30th September to 2nd November. This same squad will also feature in a 3-match ODI series against South Africa, scheduled at the Qaddafi Stadium in Lahore from 16th till 22nd September. Uncapped right-hander Iman Fatma, who recently made her T20I debut against Ireland, is part of the ODI squad. Fatma Sana, who represented Pakistan in the previous edition of the World Cup, will lead the side for the first time in the mega event. Pakistan will play all their group stage matches in Colombo. Perth's Scorchers beat Pakistan Shaheens by 48 runs in the first semi-final of the top-end T20 series at the Gardens in Darwin on Sunday. This was Shaheen's second successive loss at the semi-final stage, having lost to Adelaide Strikers in the first semi-final of last year's edition. After being put into bat, Scorchers scored 155 for 8 in 20 overs. The Under-19 and Emerging Women's Trials as part of the PCB's Talent Hunt program in Lahore have been rescheduled to take place on Thursday, 4th September at the LCCA ground. Earlier, these trials were set for Monday, 25th August, but the forecast of persistent rains in the city has forced the change in the itinerary. Imamul Haq is in red-hot form throughout the tournament. He struck a fluent 106 off 105. Batting first, Sussex posted 284 for 9 in their 50 overs, and Yorkshire suffered an early blow when opener Adam Lith fell cheaply for just 6 runs, leaving them at 11 for 1. However, Imamul Haq and James Wharton steadied the innings with a commanding 196-run stand for the second wicket, effectively sealing control of the match. Afghanistan bring in Ghazanfar to strengthen their spin department for the upcoming Asia Cup. Top order batter Ibrahim Zadran and all-rounder Sharafuddin Ashraf have also been included. Rashid Khan will lead a strong-looking Afghanistan side at the upcoming men's T20 Asia Cup in the UAE, with Noor Ahmed, Mujibur Rahman, A.M. Ghazanfar and Mohammad Nabi completing a formidable spin bowling attack along with their captain. Afghanistan will play a triangular T20I series in Sharjah against hosts UAE and Pakistan from Friday ahead of the Asia Cup. Pakistan opening batters Saim Ayub and Imamul Haq are among the 40 players from the country to have registered for the upcoming South Africa T20 auction set to be held in Johannesburg on September 9, 2025. The 4th edition of SAT20 will commence on December 26 and run until January 25. Speculation had been rife that Shan Masood could be replaced by Saud Shakil as Test captain, while reports also suggested Mohammad Rizwan's position as ODI captain was under threat. However, PCB sources have categorically denied these claims, terming them baseless. They confirmed that there is no proposal under consideration to remove Shan from Test captaincy, nor is there any plan to appoint Saud as his replacement.
Similarly, the board dismissed talk of Mohammad Rizwan being stripped of the ODI captaincy, clarifying that Salman Ali Agha is not being considered for the role. And lastly, the Pakistan cricket team has commenced a 7-day training camp at the ICC Cricket Academy in Dubai to prepare for the upcoming Tri-Nation T20I series and the upcoming Asia Cup 2025. Under the supervision of the coach and staff, players took part in specialized batting, bowling and fielding drills. The training sessions also included fitness routines aimed at sharpening skills and improving on-field performance. The Tri-Nation series will begin on August 29th with Pakistan facing Afghanistan in the opening match at Sharjah Stadium. जी दुनिया भर से क्रिकेटिंग न्यूज़ हम आपके लिए लेके आए हैं सिर्फ 15 मिनट में, बट यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे. व्हेन वी कम बैक, ब्रेक के बाद वी विल टेक एन इन डेप्थ लुक एट पाकिस्तान विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप स्क्वाड. क्या कमी पेशी रह गई है स्क्वाड में, या क्या हम पूरी तरह से तैयार हैं टू टेक अप द ऑल इम्पॉर्टेंट चैलेंज. एंड ऑफ कोर्स दूसरी तरफ पाकिस्तान मेंस टीम भी जो है वो एशिया कप में पार्टिसिपेट कर रही है, उनकी क्या तैयारी चल रही है, एंड what do the oppositions look like. अफगानिस्तान का स्क्वाड डिस्कस करेंगे, इंडिया का स्क्वाड डिस्कस करेंगे. all of this coming right up on the other side. Don't go anywhere. जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस बैक. ब्रेक से पहले ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने हिंट किया था, हम आज बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, बट वी विल स्टार्ट विद ऑफ कोर्स द स्क्वाड्स फॉर द अपकमिंग एशिया कप. पाकिस्तान का स्क्वाड तो अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन हम अफ़गानिस्तान और इंडिया का स्क्वाड आज थोड़ा सा इन डेप्थ डिस्कस ज़रूर करेंगे. और जहाँ तक बात है पाकिस्तान विमेंस टीम के स्क्वाड की, वो भी अनाउंस हो गया है, उसके बारे में भी बात करेंगे. और ऑफ कोर्स उससे पहले जो तैयारी हमारी है फॉर द वर्ल्ड कप वो कितनी है उसके बारे में भी बात करेंगे. एंड देन ऑफ कोर्स लॉट्स मोर इन स्टोर फॉर यू. क्विकली लूपिंग इन आवर गेस्ट्स फॉर टुनाइट, स्पोर्ट्स analyst and expert Hassan Azam has joined us once again. Assalamu alaikum Hassan, welcome to the show. Walaikum assalam, pleasure to be here once again. Thank you for having me. Pleasure to have you as always. उनके साथ हमें आज join किया है जी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इरफान ज़हीर ने. अस्सलाम वालेकुम इरफान, वेलकम टू द शो. थैंक यू सो मच जी, थैंक यू हैविंग मी. थैंक यू जी, आप दोनों का आपने टाइम निकाला. आज बहुत कुछ है, कोशिश करेंगे हमारा जो टाइम है उसमें सब कुछ पूरा हो जाए. पहले तो एशिया कप की तैयारी के बारे में बात करते हैं. ऑफ कोर्स वी नो ऑल द टीम्स आर गेयरिंग अप फॉर दिस इम्पॉर्टेंट एशिया कप, लेकिन हमने हमेशा अंडरडॉग्स की बात की है. क्या अफगानिस्तान को अंडरडॉग्स कहना सही है अभी कि नहीं? किसी हद तक आई गेस, क्योंकि वो लास्ट T20 अपना दिसंबर में खेले थे, बट दे टर्न अप इनटू बिग इवेंट्स एंड यू नो ऑल ऑफ अ सडन दे बिकम द डार्क हॉर्सेस. पिछले वर्ल्ड कप में भी उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, सेमीफाइनल तक पहुंच गए, साउथ अफ्रीका से उधर हारे. तो आई थिंक ख़ास तौर पे इन कंडीशंस में जो एशिया कप जहाँ पे खेला जा रहा है और फिर वर्ल्ड कप खेला जाएगा, न्यूजीलैंड और ये बाकी टीमें पाकिस्तान इंक्लूडेड विल बी वेरी ऑफ अफगानिस्तान एंड एवरी साइड शुड बी. तो इंडिया चैंपियंस थे, बट अफगानिस्तान जो थी वो नंबर 2 टीम है ना एशिया की. दिस इज नॉट रॉन्ग राइट? सो आप नंबर 2 टीम को अंडरडॉग तो कहेंगे नहीं, तो अफगानिस्तान को हम इस टूर्नामेंट में तो बिल्कुल भी लाइट नहीं लेंगे, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ their last World Cup appearance and how they surprised everyone. I think it will be fair to say कि जब भी अफगानिस्तान मैदान में उतरे, स्पेशली इन T20, आई थिंक आप उनको कभी भी लाइट नहीं ले सकते. अफगानिस्तान का स्क्वाड भी एक दफ़ा आपके साथ हम इन डेप्थ शेयर करेंगे. जी इरफान ज़हीर साहब, राशिद खान इज लीडिंग दिस स्पिन हैवी साइड वंस अगेन. कैसी तैयारी है इनकी, क्योंकि अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स जो हैं इनकी अपनी क्रिकेट जो है वो इतनी ज़्यादा होती है, चाहे वो लीग्स में पार्टिसिपेशन हो. बेशक ये पूरा साल बहुत कम इंटरनेशनल मैचेस खेले, लेकिन इनके प्लेयर्स दुनिया भर में लीग्स खेलने में बिजी होते हैं. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस अफगानिस्तान साइड? देखिए अफगानिस्तान की सक्सेस की जो रीज़न है, एक तो इन्होंने जो बेसिक कोर था वो इन्होंने चेंज नहीं किया 10-12 लड़कों का, और इसमें स्टैंड आउट जब परफॉर्मेंस आना शुरू हुई अजमतुल्लाह उमरज़ई की, खास तौर पे जो नंबर 1 इस टाइम ऑलराउंडर भी हैं. गुरबाज बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं,
और इब्राहिम जदरान, ये 3 प्लेयरों ने जब से आके इनकी बैटिंग के कोर को संभाला है, ये इंटायरली डिफरेंट साइड नज़र आ रहे हैं। और इस कॉन्टेक्स्ट में जो हम बात करें एशिया कप के लिहाज से, एशिया कप इनका होम टाउन है। ये अपने तमाम होम सीरीज़ जितनी भी क्रिकेट इन्होंने 6-7 साल खेली है वो इसी जगह पे खेली है, और उसका इमेंस एक्सपीरियंस। और लड़के ये 90% रहते ही अफगानिस्तानी प्लेयर यूएई की कंडीशन में, यूएई में ही रहते हैं ये। तो इस कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट्स, ये इनके लिए एक अल्टीमेट एक ऑप्शन है कि किसी तरह वो सरप्राइज़ करके ये टाइटल भी जीत सके। इसको कोई मैं अंडररेट नहीं करना चाहता, ना अंडरडॉग कहूँगा, ये मैं वन ऑफ फेवरेट कंटेस्टेंट भी हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शारजा की पिच इनके बॉलर्स को, स्पिनर को बहुत सूट करती है। जब इन्होंने लास्ट टाइम हमें सीरीज़ भी हराई थी उधर, ये डिपेंड करता है कि अब दुबई की पिचेस और जो दूसरी पिच है अबू धाबी की, वो कैसी रखते हैं। क्योंकि शायद हो सकता है कि रेट ऑफ स्पिन का मार्जिन को थोड़ा सा कम रखे। टेंडेंसी तो पिचेस की हम सब जानते हैं कि वो स्पिनिंग ट्रैक होते हैं, बट उसमें ये देखना है कि ड्यू फैक्टर भी कितना आता है। अभी जो थोड़ा बहुत मैंने उधर लोगों से पता करने की कोशिश की है, कुछ हमारे जर्नलिस्ट भी उधर मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि कभी कभार लेट टाइम पे, लेटर पार्ट पे ड्यू आ रही है। तो जब ड्यू आएगी तो फिर आपकी जो सेकंड बैटिंग है वो ऑब्वियसली कन्वीनियंट हो जाती है। जैसे हमें 2022 का वर्ल्ड कप याद है, जो टीम टॉस जीती थी वो ऑप्ट करती थी फील्डिंग को और वो मैच जीती थी। बट अभी मुझे पता चला है कि जो ट्राई नेशी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पहले बैटिंग मुश्किल हो रही है। चले हम अभी डिटेल्स में जो है वो भी जाएंगे। अभी फिलहाल स्क्वाड की जो बैलेंसेस पे बात करते हैं। अफगानिस्तान ऑलरेडी देयर नोन टू बी डोमिनेंट इन देयर स्पिन डिपार्टमेंट, अब उन्होंने उसको मजीद भी स्ट्रेंथन कर लिया है। सो वी नो मुजीब इज देयर, नबी इज देयर, राशिद इज देयर एंड नूर इज ऑलरेडी देयर, and now seems like they have another addition to their spin attack. Yeah, I mean AM Ghazanfar, he's another mystery spinner who's been playing leagues around the world. IPL में भी pick हो चुके हैं and he looks like the big deal. He looks like the real deal. और उसके साथ साथ शरफुद्दीन अशरफ, वो भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं। तो आप दुनिया में किसी भी टाइप का स्पिनर चाहते हैं वो उन्होंने अपनी स्क्वाड में रख लिया है। ऑफ स्पिनर, राइट आर्म रिस्ट स्पिनर, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, और आई मीन दे हैव द लॉट। तो Ghazanfar himself, he is just 19, जितना हमें पता है on उस पे record, and he already has 2 fifers. Yeah. Is that right? I mean, इस age में तो with that kind of start, of course, that element of mystery will further create a lot of hype around. ऐसे players की ना टूर्नामेंट्स में जाते हुए बहुत हाइप होती है अगली टीम्स को, क्योंकि दे डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। राशिद खान के बारे में हमने बहुत दफ़ा ये बात भी की हुई है कि कहीं ना कहीं शायद उनका ना एक एंटीडोट, क्योंकि वो इतनी क्रिकेट खेलते हैं, इतनी लीग क्रिकेट खेलते हैं कि बैटर्स समवॉट हैव फिगर्ड आउट राशिद खान को रीड कैसे करना है। बट जितना ज़्यादा आप एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री रखेंगे, आई थिंक आपकी टीम उतनी ही ज़बरदस्त लगेगी। और अफ़गानिस्तान की स्पिन के ऊपर हमने बात की है, बट पेस अटैक भी उनका, नवीन उल हक, फजल हक फारूकी, ये उनके जो है बहुत प्रोमिनेंट और सीजनड फास्ट बॉलर्स हैं। इनके होने से क्या डेप्थ ऐड हो रही है? देखिए फजल फारूकी और नवीन तो आई गेस मस्ट खेलेंगे, ये दो तो खेलेंगे। अब इनके लिए प्रॉब्लमेटिक पार्ट बन रहा है क्योंकि आपके दे हैव लग्जरी के, दे हैव 5 बेस्ट स्पिनर। किसी को भी आप यू नेम इट, इवन नबी का नाम अभी मिस कर रहे हैं, वो भी है छठा बॉलर इनके पास। ये समहाउ इनके पास एक ब्लेसिंग भी है और समहाउ ये प्रॉब्लमेटिक पार्ट भी है कि आप किसको रखेंगे, किसको मिस करेंगे। मुजीब थोड़ा लंबे टाइम के ले ऑफ पीरियड के बाद आ रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि वो ऑटोमेटिक चॉइस होंगे। पहले आप गजम्फर और नूर के साथ जाएंगे क्योंकि नूर ने लेटली पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब किया है। और आपको याद होगा वर्ल्ड कप के अंदर भी जिस तरह उसने आके 4-5 आउट किए थे, स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए उन्होंने इसको स्क्वाड में इंडक्ट किया। तो ये मस्ट खेलेगा। तो ये पाकिस्तान के लिहाज से शायद इनकी कम्बिनेशन डिफरेंट हो, डिफरेंट यूएई के साथ या किसी और टीम के साथ वो खेलेंगे, तो शायद ये किसी और अपने प्लान के साथ जाएँ। नवीन और जो फजल फारूकी है, ये मुझे लगता है कि ये 2 पेसर रखेंगे और फिर 3 स्पिनर और चौथा एक ऑप्शन अपने नबी की रखेंगे अपने 3 स्पिनर में आपके पास बिल्कुल ऐसे ही है। 3 स्पिनर में आपके पास ऑटोमेटिक चॉइस राशिद खान तो है ही, उन्होंने खेलना ही खेलना है, एंड देन नूर अहमद ऑब्वियसली, क्योंकि वो अभी कंसिस्टेंटली खेलते भी आ रहे हैं बिग लीग क्रिकेट। और दूसरी तरफ मुजीब और इसमें मिस्ट्री स्पिनर की भी आपके पास ऑप्शन है विद नबी एंड गुलबदीन नाइब ऑल्सो देयर। सो देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस देयर, बट इन टर्म्स ऑफ पेस बैटरी I would absolutely agree with you. ये दोनों तो खेले ही खेलने वाले हैं। Then they have one reserve pacer as well in a left arm. और अज़मतुल्लाह उमर से भी 2-3 ओवर करता है, वो भी अच्छा खासा एक जबरदस्त ऑलराउंडर। वो भी उनके पास 2 पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स में ऑप्शन है। तो आई थिंक इट्स अ गुड स्क्वाड, इट्स अ कंपेटिटिव स्क्वाड। टॉप ऑफ द ऑर्डर भी आपका सदीकुल्लाह अतल भी आ गए हैं जिन्होंने 85 स्कोर किया था इधर चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। सो दैट लेफ्ट हैंडर्स
going to be in the top order as well. Then you have Kareem Jannat and the other guys there too. तो I more think or less उन्होंने balanced squad है. अपने seasoned players के ऊपर ही they're banking on Yeah, them it's a mix as once well with again. youngsters. But Yeah. slightly top order उन्होंने थोड़ा सा इस बार जो है वो चेंज किया है. उनका जो ग्रुप है अफगानिस्तान का, they've got Sri Lanka, they've got Hong Kong and Bangladesh because they are in group B. तो I think interesting होगा कि अपने पहले जो कुछ मैचेस हैं इनकी starting 11 कैसे बनती है, क्या बनती है. बट राशिद खान के ऊपर एज अ कैप्टन उनके लिए ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लीडिंग अफगानिस्तान. नाउ दैट दे हैव दैट एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग वर्ल्ड कप्स, ऑफ मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स एंड दैट प्रेशर जो कि वो ऑलरेडी इतना ज़बरदस्त हैंडल करते हैं. व्हाट डज दिस मीन फॉर राशिद खान? I think it's about time that Rashid is very respected and a very revered personality, not just in Afghanistan cricket but Afghanistan overall, and within the squad as well, because the amount of cricket he's played, he's almost like a big brother to all of them. तो उनकी एक लेगेसी ये छोड़ना अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे फीट्स अचीव किए हैं जो कि एक लेगेसी उनकी बना गई है. बट अफगानिस्तान टीम को फाइनल तक लेके जाना, एशिया कप के फाइनल में लेके जाना, एंड देन ऑब्वियसली आइडियली उनके लिए वो जीतना आई थिंक बहुत बड़ा मार्का होगा. और ऐसी तैयारी वो भी करेंगे. इवन आई थिंक मोहम्मद नबी की आप बात करें, यू वुडंट सी हिम प्लेइंग द नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप. तो दीज आर प्लेयर्स जो चाहते हैं कि अपनी स्टैम्प छोड़ के जाएं, कोई एक ऐसी ट्रॉफी लेकर जाएं कि जितने भी अगली अब लॉट है वो लुकअप करें उस चीज़ को. बिल्कुल, वी आर ऑल एक्साइटेड फॉर दिस एशिया कप क्लैश, क्योंकि सब टीम्स इतनी हेवीली लोडेड लग रही हैं विद ऑल ऑफ देयर बैलेंस्ड ऑप्शंस. स्पेशली अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, लेट्स टेक अ लुक एट द इंडियन स्क्वाड एज वेल. वी नो दैट Surya Kumar Yadav has been given this honor to lead India in this Asia Cup. और बहुत सारी इनके ऊपर भी नजरें हैं, हम स्क्वाड के ऊपर भी इन डेप्थ बात करेंगे. बट सूर्या कुमार यादव एज अ कैप्टन अभी एक इंजरी से भी अपने रिहैब से गुजर के आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ही विल हैव दैट at the back of his mind. But how important will this assignment be for Sky? या एब्सोल्युटली, इसमें कोई डाउट नहीं है. बड़ा ज़बरदस्त रहा है, लीड भी अच्छा किया है, बट समहाउ उनकी अपनी परफॉर्मेंस डिक्लाइन की तरफ गई है रिसेंटली. इंग्लैंड की सीरीज़ की बात करें या आप साउथ अफ्रीका में देखें तो ही हैज़न्ट परफॉर्म्ड वेल. इसी वजह से भारत की एक चीज़ पाकिस्तान से डिफरेंशिएट वो ये करती है कि दे डोंट चेंज कैप्टन कंटिन्यूसली. जैसे हमारी एक दो सीरीज़ जाती है तो वी टॉक अबाउट कि जी अनु चेंज कर दो, दे डोंट डू दैट. अभी देखें तो उन्होंने उसके पीछे शुभमन गिल को खड़ा कर दिया है. वो फ्यूचर का या लंबा टाइम के लिए कैप्टन जिसको देखना चाह रहे हैं. वैसे आप स्क्वाड देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद श्रेयस अय्यर को होना चाहिए था मिडल में, वो आप उस तरह की स्टेबिलिटी देता. बट वो कैप्टनसी के कॉन्टेक्स्ट में भी देख रहे हैं, अभी से वो कनेक्ट कर रहे हैं कि अगर किसकी परफॉर्मेंस और डिक्लाइन पे जाती है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है, 35 के ऑलमोस्ट होने वाले हैं ये, तो शायद वो भी कंसिडरेशन में रख रहा है उनका बोर्ड. और वो शुभमन गिल को तीनों फॉर्मेट पे लेके चलना चाह रहे हैं, तो दैट इज़ द रीज़न. बट क्योंकि वर्ल्ड कप तक तो ये तो मुझे नजर आ रहा है कि ये ही लीड करेंगे. तो और शुभमन गिल को क्योंकि अब वाइस कैप्टन की जिम्मेदारी वो कर रहे हैं, हालांकि उनको भी T20 खेले हुए जो है इंडिया के लिए अच्छा खासा टाइम हो गया उनको लास्ट ईयर बैक. हाँ जी, वो तो ये चीज़ कितनी बड़ी, हालांकि ऑफ कोर्स वी नो वो टेस्ट रिकॉर्ड अपना साथ साथ वो अपना करियर जिस तरह से उभर के एज अ टेस्ट लीडर वो इंडिया का बाहर सामने आ रहे हैं शुभमन गिल. लेकिन जब आपको गियर चेंज करना है दैट मीन्स आपका पूरा का पूरा फिर एक माइंडसेट शिफ्ट होगा. What will Shubman Gill be adding to this Indian team? I think a lot of leadership qualities as well, some stability in the middle order. जो कि अगर आप technically correct players को देखना चाहें तो इस पूरी squad में शुभमन गिल से बेहतर आपको कोई technically correct player नहीं मिलेगा. और हमने देखा कि किसी तरह वो लास्ट वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने रोल अदा किया था कि वो शुरू वाले मैचेस में तो तेज खेलते रहे, लेकिन जब बिग मैचेस क्रंच मैचेस आते हैं यू नीड समबडी who can take the innings along a little bit longer. Not कि अपना स्ट्राइक रेट नीचे लेके आए, बट टेक्निकली अगर आपको कोई टफ पैसेज को मनूवर करना हो तो वो कर सकें. दैट इज़ व्हाट दे गेट इन शुभमन गिल. एंड आई थिंक वो हाई ऑन कॉन्फिडेंस है. जिस तरह उन्होंने लीड किया है इंग्लैंड में इंडिया की साइड को, लीडरशिप रोल को जिस तरह असेस किया है, तो आई एम नॉट श्योर कि अगर इंडिया टीम सूर्या कुमार यादव की कैप्टनसी के बारे में ज़्यादा वरिड हो या ना हो, लेकिन एज अ लीडर इस स्क्वाड में एक नई एडिशन आती है जो उन्हें ज़रूर हेल्प करेगी. उसके अलावा आप देखें जसप्रीत बुमराह वापस आ गए हैं. इट्स बीन अ वाइल कितनी इंटेलिजेंटली उन्हें इस्तेमाल किया इंडिया ने. लास्ट वर्ल्ड कप खेले, उसके बाद कोई T20 नहीं खेले, चैंपियंस ट्रॉफी में इंजर्ड थे,
सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट खेले एंड नाउ ही इज बैक इनटू द और उनको आई एम T20 श्योर side. उनको कोई ऐसी इनसिक्योरिटी नहीं थी जब वो टीम Yeah, से yeah. बाहर थे, हाँ जी। जो कि एक स्ट्रक्चर जो होता है एक सेटअप का, वो आपको प्रोवाइड करता है वो सिक्योरिटी कि आप एक मैच विनर हैं, प्रूवन मैच विनर है। अब आपको मजीद कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने अपनी हेल्थ और अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है, एंड यू वॉक राइट बैक इनटू द 11 एनी गिवन डे, एंड जसप्रीत बुमराह is that bowler. Yeah, I mean, Rohaji, yes, beautifully put. You save your best horses for the biggest races, and that's what they've done with Bumrah. Absolutely, he will be seen leading the pace attack. Of course, साथ अर्शदीप सिंह भी होंगे। अच्छा, उनका भी एक पेस अटैक की शक्ल ज़रूर निकल रही है। कितना यूज़फुल होगा ये इंडिया के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स उनके पास वो ऑप्शंस भी हैं, उनके पास पांड्या भी हैं, उनके पास ऐसे बॉलर्स भी हैं जो कि आपकी उनकी बैटिंग को भी मज़ीद इम्प्रूव करते हैं, बट ऑफ कोर्स फ्रंट लाइन सीमर्स जो है वो तो ज़रूरी होते हैं। जैसे बुमराह की हम बात करें, वन ऑफ द बेस्ट है, और जिस तरह T20 वर्ल्ड कप इन्होंने खेला था और जिताया था इंडिया को, दैट आउटस्टैंडिंग। अर्शदीप हाईएस्ट विकेट टेकर है, जब से 2 साल से वो इंडिया के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर है। ये 2 इनके कोर होंगे। हार्दिक पांड्या डेफिनेटली वो तीसरी ऑप्शन इनके पास होंगे। चक्रवर्ती भी खेलेगा, अक्षर पटेल भी खेलेंगे और कुलदीप भी खेलेंगे। ये इनका कोर, जिस तरह हमने पहले देखा वर्ल्ड कप के अंदर भी, चैंपियन ट्रॉफी में भी, कि 6 की लग्जरी के साथ खेलते हैं। अब जो स्पेशलाइज और अच्छी चीज़ ये है इनके पास, एडवांटेज ये है कि ये 6 के 6 बॉलिंग ऑलराउंडर भी कंप्लीट हैं, और समहाउ बैटिंग में भी जब रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हार्दिक पांड्या, वो कंप्लीट बैटर भी हैं। ये लग्जरी किसी के पास नहीं है, किसी और टीम के पास नहीं है। दूसरे नंबर पे आप न्यूजीलैंड को ज़रूर कह सकते हैं कि इस तरह की कंप्लीट ऑलराउंडर उनके पास है। तो ये इनका कोर होगा। बट दूसरा ये कि बुमराह को सारे मैचेस नहीं खिलाएंगे। ये बुमराह को जब लगेगा पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच है, कोई क्रंच मैच है, फिर खिलाया जाएगा। आप देखेंगे दूसरी अपोजिशन में हर्षित आ जाएंगे, किसी और बॉलर को वो चांस देंगे। तो इसी उनके पास इतनी डेप्थ है कि उनको प्रॉब्लमेटिक कोई पार्ट बनेगा नहीं। तो बैटिंग भी इनकी पूरी है, बॉलिंग भी पूरी है। सिर्फ एक शायद मुझे लगता है कि जसवाल को कहीं ना कहीं ये देख सकते थे, जिस तरह आपने रिंकू को रखा या आपने डूबे को रखा, बैटिंग ऑलरेडी क्योंकि उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग तो है और उनके बेंच पे भी ऐसे प्लेयर्स बैठे हैं, तो उनकी मल्टीपल जो है 11s बन सकती है। बट खैर, टॉप ऑफ द ऑर्डर अगर हम बात करें, उनके पास बड़े एक्साइटिंग नाम इस वक्त हैं। ऑफ कोर्स अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, ये दोनों टॉप 2 इस वक्त रैंकिंग्स में हैं ये प्लेयर्स, एंड दे आर पार्ट ऑफ दिस फॉर्मिडेबल बैटिंग साइड। व्हेनेवर यू थिंक ऑफ इंडिया इन मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स, यू नो के यू आर गोइंग टू हैव अ हार्ड टाइम क्रिएटिंग चांसेस फॉर देयर बैटर्स। हमें याद है कि लास्ट एशिया कप में भी बहुत ही एक आउटस्टैंडिंग स्पेल था, नसीम शाह थे, शाहीन थे, तब जाके वो रोहित शर्मा की हमें अर्ली ब्रेक थ्रू मिला था। अदरवाइज इनके बैटर्स जो है, इनको दे डोंट गिव दोज चांसेस। हाउ इम्पॉर्टेंट आर दीज गोना बी, दीज 2 यंगस्टर्स, क्योंकि वी नो के something about these Indian youngsters, they are very fearless when they come out to bat. Yeah, absolutely. I think ये उनको ड्रिल किया जाता है, ग्रूम किया जाता है इस चीज़ पर। ख़ास तौर पे मेरे इस वक्त T20 फॉर्मेट के वन ऑफ द फेवरेट अलॉन्ग आई मीन साइम अयूब, अभिषेक शर्मा। आई थिंक ही टेक्स द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, द वे ही बैट्स, इट्स अमेजिंग। और उनके साथ आप तिलक वर्मा को तो देखेंगे, संजू सैमसन को भी देखेंगे, वो एक उनका भी एक अलग something about left-hander openers. I think it just looks much more classy. It's just look poetry in motion, isn't it? शुरू में ही आपने टेंशन में डाल दिया बॉलर को। लेकिन देखिए, जब भी पाकिस्तान इंडिया या बड़े मैच की बात आती है ना, तब लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, तब नर्व्स को संभालना, वो सब कुछ करना, वो फिर कोई और गेम हो जाएगी। बट जनरली स्पीकिंग, जैसे आपने बात की, बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप है इनकी। संजू वो विकेट कीपर का रोल भी अदा करेंगे। जितेश शर्मा को लेके गए एज अ सेकंड विकेट कीपर, बट उन्हें आप ज़्यादा नहीं फीचर करते देखेंगे। बट देन यू द लाइक्स ऑफ शुभमन गिल, तिलक भी हैं, सूर्या कुमार यादव हैं, 5 तक तो आप ये सोच रहे हो, और फिर रिंकू सिंह भी हैं स्क्वाड के अंदर, तो एक अच्छी आपको बैटिंग लाइनअप मिलती है। देन यू ऑलराउंडर्स लाइक अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर दुबे और पांड्या में ये देखेंगे। स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर एक ही है। उनको डिसाइड ही अब करना है उनका बेस्ट 11 क्या बनता है। कहीं पे अगर वो कुलदीप को लेके आते हैं, लेट्स सी उनको क्या चेंजेस करने पड़ते हैं। शायद बैटिंग उनको थोड़ी अपनी कम करनी पड़े, लेकिन वो भी आप कम किसके स्टैंडर्ड से कम है? आई डोंट थिंक कम इज द राइट वर्ड। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, बट व्हेन वी कम बैक वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन, ऑफ कोर्स लुकिंग एट द पाकिस्तान वुमेन्स स्क्वाड फॉर द अपकमिंग
जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बैक ब्रेक से पहले वी वर डिस्कसिंग अफगानिस्तान एंड इंडियन स्क्वाड्स फॉर द अपकमिंग एशिया कप। बात अब करते हैं पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की, हु आर गियरिंग अप फॉर द अपकमिंग मेगा इवेंट। इट इज़ द ICC ODI वर्ल्ड कप 2025 एंड पाकिस्तान आर ऑल सेट टू पार्टिसिपेट। अपने अर्लियर दिस ईयर देखा क्वालिफायर्स के थ्रू पाकिस्तान ने जीत के क्वालिफायर्स जो है वो क्वालिफिकेशन हासिल की इस वर्ल्ड कप की। और जहाँ तक ODI क्रिकेट की बात है, ज़्यादा गेम टाइम नहीं मिला है अभी तक प्लेयर्स को, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट पहले एक नज़र डालते हैं जी स्क्वाड पे। हाउ एक्साइटिंग इज़ इट कि इस स्क्वाड की इस वक्त की जो हेडलाइन बन रही है वो ये है कि एक 20 साल की बैटर ईमान फातिमा, जो कि अनकैप्ड है, अभी तक डेब्यू नहीं उनका हुआ, उनको वर्ल्ड कप के लिए शामिल किया गया है। शी इज़ व्हाट आई हियर शी इज़ एन एक्सप्लोसिव बैटर इज़ वेल, और वो ऊपर भी बैटिंग कर सकती हैं, वो मिडिल ऑर्डर में भी उनको खिलाया हुआ है। तो अभी तक जितना भी थोड़ा बहुत उनका एक्सपीरियंस रहा है, देखने में यही आ रहा है कि एक फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑप्शन ईमान फातिमा जो है वो वी कैन यूज़ हर। और कितना बड़ा एक प्लेयर के लिए, एक आप इसको प्रेशर कहें, नर्वसनेस कहें, एक्साइटमेंट कहें, कि एक वर्ल्ड कप से पहले आपको ये जिम्मेदारी दी जा रही है दैट इवन दो यू हैव नथिंग टू शो फॉर, आपका कोई प्रायर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ ये जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैचेस खेलेंगी पाकिस्तान की टीम वही होंगे, but she's somehow made it to the World Cup team. She must be pretty special. Yeah, she is special. Under 19 2023 के World Cup में 4th highest run scorer थी. She scored 287 at a strike rate of 150 plus. Wow. फिर उन्होंने जो अभी women's का टूर्नामेंट हुआ T20 डोमेस्टिक, उसमें बड़ी कमाल परफॉर्मेंस दी, आयरलैंड के खिलाफ डेब्यू किया। और होता यही है रोहा जी, जब आप उनमें ना एक मैच विनर नजर आता है, आपको पता लगता है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक, अगर मैं कंपेयर कर सकूं इसे, इंजमाम अल हक 92 वर्ल्ड कप कम्स एज अ यंग बैटर, प्लेज एक्सप्लोसिव इनिंग्स, मैच विनिंग इनिंग्स, और आपको फाइनल पे ले जाते हैं, और फाइनल में भी जिस तरह खेलते हैं, यू एंड अप डूइंग व्हाट यू डू। इसी तरह ईमान फातिमा राइट नाउ इज अ कमोडिटी नॉट मेनी पीपल नो अबाउट, बट शी इज समबडी हुज डायनामिक। जिस तरह आपने कहा, ऊपर भी खेल सकती हैं, मिडिल ऑर्डर में भी तेज खेलती हैं, एक्सूबरेंस ऑफ यूथ है, और आपको पता है उस एज में देयर इज नो प्रेशर, देयर इज नो लाइक वेट ऑन योर शोल्डर्स, यू जस्ट गो आउट देयर, एक्सप्रेस योरसेल्फ। वी नीडेड हर फॉर दिस ODI format for the World Cup as well, and I think it's a very positive and bold move on part of the Pakistani management, and it has to be, you know, appreciated. Of course, हम कप्तानी के ऊपर भी थोड़ी बात करते हैं। फातिमा सना, obviously हम उनको थोड़ा, we have been seeing her for a while leading पाकिस्तान T20 टीम। अब ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ODI वर्ल्ड कप की, इवन दो उनको प्रायर वर्ल्ड कप का भी एक्सपीरियंस है, लेकिन एज अ कैप्टन आप जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी करें इतनी यंग एज में, वी रिमेंबर लास्ट ईयर जब वो वर्ल्ड कप में ट्रैवल कर रही थी, आई थिंक कुछ अर्सा पहले, तो शी लॉस्ट हर फादर ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, शी ट्रैवल्ड बैक एंड देन उसके 3 दिन 4 दिन बाद शी वाज बैक विद हर टीम। एक कैप्टन के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, अपनी टीम को ये डेडिकेशन शो करना। फातिमा सना के डेवलपमेंट पे क्या कहेंगे? या एग्जैक्टली, निदर डार के बाद जब हमने देखा कि शिफ्ट किया गया कैप्टनसी को, तो गेम की अवेयरनेस भी नज़र आई, जो एक पैशन आपको होना चाहिए, हंगर होना चाहिए जीत का, वो भी नज़र आया। और फिर जो हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, जो क्लैरिटी से लैग करती थी हमारी वुमेन क्रिकेट के अंदर, जब हम देखते थे इंग्लैंड को, इंडिया को या ऑस्ट्रेलिया की टीम को, तो हमें नज़र आता था वी आर लैकिंग दैट। वो भी हमें 2 सीरीज़ के अंदर नज़र आया कि वो ड्राइव कर रही हैं, खुद भी कर रही हैं, लड़कियों को भी साथ लेके चल रही हैं। तो आई थिंक सो कि शी इज़ अ वंडरफुल लीडर। वो खुद भी बड़ा 100% बैटिंग बॉलिंग जब करने आती हैं, आप ये देखिए उनके साथ लड़कियाँ किस तरह अच्छा कम्प्लीमेंट कर रही हैं। सिदरा की बात कर लें, सादिया इकबाल की बात कर लें, तो वो रैंकिंग में भी नंबर 1 हमने देखा। तो ये जब आपका कोई लीडर अच्छा आता है, तगड़ा आता है, जो हम अक्सर बात करते हैं कि लीडरशिप इतनी मैटर करती है किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर, और क्रिकेट के हवाले से तो हमेशा कहा जाता है कि ये वन ऑफ दैट स्पोर्ट है कि जो शायद बाउंड्रीज से नहीं चल सकती, वो अंदर हर बॉल पे आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि बेस्ट कैप्टन वही होता है जिसकी अपनी गेम सेंस अपने 11 से भी अच्छी होनी चाहिए और अपोजिशन से भी 11 से अच्छी होनी चाहिए, और वो हमें इसमें ग्लिम्पसेस नज़र आ रहे हैं। और ये उनका पहली दफ़ा एज ए लीडर उनका ये इवेंट होगा जिसमें वो कैप्टनसी करेंगे। तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो जिस तरह अभी उन्होंने इवेंट भी जीता अभी पाकिस्तान में, जो हमने क्वालिफाइंग, हाँ जी, वो जीता, और जिस तरह की फॉर्म में लड़कियां हैं, आई गेस कि पाकिस्तान के बहुत अच्छे चांसेस हैं। सेमीज में तो स्टिल मस्ट आना चाहिए ना। अच्छा, वाओ, आई वुड लव टू सी दैट हैपन, क्योंकि क्वालिफायर्स सब कॉन्टिनेंट है, हाँ जी बिल्कुल हमारे, क्योंकि आपने सादिया की बात की, T20 में शी वाज आल्सो द नंबर 1 बैटर जस्ट अ व्हाइल अगो,
और उनकी अपनी परफॉर्मेंस, फिर ऑफ कोर्स हमें बॉलिंग में, फास्ट बॉलिंग में फातिमा इज़ देयर लीडिंग द अटैक, शी इज़ लीडिंग इन एवरी डिपार्टमेंट अगर आप देखें। लेकिन इज़ दैट गोइंग टू बी इनफ? जस्ट 1, 2, 3 इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज, will those be enough in a World Cup environment? Because you are competing with teams that are preparing for this World Cup. एक systematic तरीके से 3-4 साल की तैयारी है। We know पाकिस्तान की players में talent की कोई कमी नहीं है, it's just कि हमारे पास enough one day experience नहीं है to show for. ये एक cause of concern है। इसको हम कैसे tackle कर सकते हैं? What is the right way to approach a World Cup? Is it just 3 matches at home against South Africa? I mean, अब तो यही कर सकते हैं आप जितना वक्त रह गया, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं हुआ मोहम्मद वसीम और उनके साथ जो पूरी टीम है उसे इस टीम के साथ काम करते हुए। लेकिन ओवरऑल कहना होगा कि जिस डायरेक्शन में पाकिस्तानी विमेंस क्रिकेट टीम जा रही है, दैट्स रियली गुड टू सी। खासतौर पे उनका जिस तरह डोमेस्टिक शेड्यूल भी अनाउंस हुआ था और फिर जो उनकी ए टीम के टूर्स भी शेड्यूल अब फ्यूचर में होंगे, तो इट्स अ गुड साइन। और जिस तरह माई कॉलीग वेरी राइटली एक्सप्लेन, फातिमा सना एज अ यंग एग्रेसिव लीडर, आपको नज़र आता है कि शी कुड लीड पाकिस्तान फॉर द नेक्स्ट डेकेड, तो उसमें आपको एक लॉन्ग टर्म प्लान नज़र आता है। फिर आपने जिस तरह यंगस्टर्स और एक्सपीरियंस प्लेयर्स का एक अमेलगमेशन बना के इस वर्ल्ड कप में आप स्क्वाड लेके जा रहे हैं, वो भी आपको इसी चीज़ की अक्कासी करता है, विच इज़ गुड टू सी। आई मीन समबडी लाइक सादिया इकबाल पिछला वर्ल्ड कप अनफॉर्चुनेटली इंजरी की वजह से नहीं खेल सकी, शील हैव अ पॉइंट टू प्रूव, गुल फिरोजा विल हैव अ पॉइंट टू प्रूव, क्योंकि फातिमा सना के साथ मेन फास्ट बॉलिंग में वही अटैक करेंगी। देन पीपल लाइक मुनीबा, यू नो, who's an experienced campaigner now, और वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस कैंपेनर आलिया, वो मेन स्टे होंगी, बैकबोन होंगी मिडिल में। फिर नतालिया परवेज, उनकी भी वापसी हुई है, तो देयर इज अ लॉट टू सी। क्योंकि पाकिस्तान अपने सारे जो ग्रुप मैचेस अभी तक जो फिक्सचर्स हैं कोलंबो में खेल रहे हैं, पिछले साल नहीं, सॉरी, कुछ जस्ट वाइल बैक जब हमने देखा कि एक हाइब्रिड अरेंजमेंट हुआ, इंडिया प्लेड ऑल ऑफ देयर चैंपियंस ट्रॉफी मैचेस एट अ न्यूट्रल वेन्यू, बहुत सारी डिबेट्स और ये ऑनलाइन कॉन्वर्सेशंस भी अराइज हुई थी। इज़ दैट फेयर? यू नो, इसके ऊपर भी बात हुई थी कि जब सब टीम्स जो हैं वो मल्टीपल वेन्यूज़ की तैयारी कर रही हैं, तो एक टीम जो है वो एक ही वेन्यू के लिए, और बहुत से फ़ायदे इस चीज़ के भी हुए। अब पाकिस्तान है उस सीट में वेयर दे नो दे विल बी ओनली प्लेइंग इन कोलंबो। इसका क्या एडवांटेज पाकिस्तान को है और कैसे हम इसके लिए बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं? देखिए, दैट इज़ नॉट आवर चॉइस, हमने तो खुद से नहीं किया, और हम तो अक्सर बात करते हैं कि हमने तो कभी दुनिया को ये मैसेज भी नहीं दिया कि वी डोंट वांट टू प्ले, या जाना नहीं चाह रहे, या बुलाना नहीं चाह रहे। अभी भी 2 दिन पहले भी उनकी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से ये मैसेज आ चुका है, जी वी वॉन्ट प्ले एनी बायलैटरल सीरीज विद पाकिस्तान। ICC के इवेंट होंगे या कोई भी स्पोर्ट्स है जो मल्टीनेशनल होगा वो खेला जाएगा, और वो न्यूट्रल वेन्यू पे होगा, तो ये उनकी चॉइस है। उनको एडवांटेज हुआ, सबने देखा वेन्यू पे खेलेंगे टिल 2027 जी, तो ये न्यूट्रल वेन्यू पे उनकी चॉइस है। हम उनको भी हुआ चैंपियन ट्रॉफी में एक ही वेन्यू पे, एक ही जगह पे, ना ट्रैवल कर रहे हैं, उसी कंडीशन में खेल रहे हैं। कोई टीम जा रही है पाकिस्तान, कोई वापस आ रही है। अभी भी अगर हमें भी एडवांटेज होता है तो मेरा ख्याल है कि हमारा दैट इज नॉट आवर चॉइस, ये तो एक फोर्स चॉइस है जो हमें दी जा रही है। बट समहाउ डेफिनेटली इस वाले वर्ल्ड कप के लिए तो इट वाज आवर चॉइस कि ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट, हाँ जी, वो तो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट करना पड़ा ना। आल्सो फेयर क्योंकि अभी जस्ट जनवरी में ही ऑफ कोर्स पाकिस्तान हु वर होस्टिंग द चैंपियंस ट्रॉफी, दे हैड टू मेक alternate arrangements, so I think now it's only fair that India also do that and accommodate. वो तो अपडेट फॉर टैट ही होगा जी। अब आप इसको खैर जिस भी उसमें तोलें, लेकिन अनफॉर्चुनेट ज़रूर है ये सिनेरियो, बिकॉज दोनों नेशंस के फैंस देखना चाहते हैं दूसरी टीम्स को। जितना भी हम फैन से बातचीत करें, हमें वी नो कि ये प्लेयर भी खेलना चाहते हैं। देखिए, प्लेयर से भी आप बात करेंगे, दे वुड वांट टू प्ले। उनके देखे ना, कोहली वगैरह, कभी रोहित शर्मा खेल ही नहीं सके, बुमराह, हमारे कई प्लेयर हैं वो उधर नहीं जा सके, तो बट खैर चांसेस, इरफान ने तो कह दिया कि सेमीज तक जाना चाहिए पाकिस्तान को, गिवन कि हम कोलंबो में खेल रहे हैं और हमारे ग्रुप मैचेस वहीं पे हैं। अगर सेमीफाइनल के लिए पाकिस्तान क्वालिफाई करते हैं और फाइनल के लिए, तो कोलंबो में वो भी खेले जाएंगे। आई थिंक स्काई इज द लिमिट। आप जितना हाई अपना गोल रखेंगे, आई थिंक यू एम फॉर द स्टार्स, यू लैंड एट द मून वाली बात है। और पाकिस्तान को ऐसा ही अपना टारगेट रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह ये टूर्नामेंट आगे चलता जाता जाएगा, आप और यूज्ड टू होते जाएंगे उस कंडीशंस के, आपको निटी ग्रिटी पता चलती जाएगी, ये सरफेस कैसे ओवर द 100 ओवर्स अपने आप को चेंज करता है, कि कौन से बाउंड्री एंगल ज़रूरी हैं, कहाँ से हवा चल रही है, किस वक्त स्पिनर लगाना है। ये चीज़ें ऑलरेडी आपके माइंड में हैं, बट और क्लियर होती चली जाएंगी जैसे जैसे आप आगे जाएंगे। आई थिंक
इट्स पाकिस्तान को जिस वजह से भी ये सिचुएशन में डलना पड़ा, बेस्ट यूज करें उनका, ये हमें ही फायदा है. लेट्स मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर द पाकिस्तानी टीम. Bilkul, and wishing Pakistan all the best. Of course, we know going into this World Cup, the 3-match series against South Africa at home, which will be starting on the 16th of September. It will be the all-important, जिसे कहते हैं ना, आपके आखिरी 3 मैचेस कॉम्बिनेशंस आप अपने टेस्ट कर लें और एक दफ़ा पक्की तैयारी कर लें पेपर से पहले और वो रिवीजन का टाइम अब ये 3 मैचेस हैं और वी आर ऑल गेयर्ड अप फॉर एंड आई होप रियली आप लोग भी जो भी लाहौर में हमारा शो लाइव देख रहे हैं ज़रूर जाएं, स्टेडियम जाएं, टीम को सपोर्ट करें. ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले अपने टीम को सपोर्ट करें एंड ऑफ कोर्स बैक द गर्ल्स एज दे गो ऑन टुवर्ड्स द वर्ल्ड कप चैलेंज. नाउ थोड़ा सीरियस अब हम करते हैं डिस्कशन को. सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात करते हैं. ये इस वक्त एक बज़ डिस्कशन चल रही है जो कि आई डोंट थिंक मैंने कभी भी अपनी जितनी देर से मैं काम कर रही हूँ और आई थिंक आप लोगों ने भी देखा होगा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट में कैटेगरी ए में 0 प्लेयर्स, नोबडी. ये इज दिस एन इंडिकेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ क्रिकेटर्स वी हैव राइट नाउ? बिकॉज इफ इट इज सो तो ये बहुत एक डार्क चीज़ है, इसके ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए. I think it's a mix of things. If you'll allow me to, there are 2-3 points I'd like to elaborate on. पहली चीज़ तो ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स में कैटेगरी ए में प्लेयर क्यों नहीं है, ये भी देखना है, और बी में जो प्लेयर्स हैं वो क्यों है, सी में क्यों है, डी में. उसकी सबसे पहली वजह ये है कि अब भी कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं परसीव्ड वैल्यू या परसीव्ड यूजेज के ऊपर. एक पैरामीटर ये है कॉन्ट्रैक्ट बनाने का. इसका मतलब ये है कि आप कौन सा प्लेयर कितना इस्तेमाल करने वाले हैं अगले साल के लिए और वो कितने फॉर्मेट्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है करंटली. मिसाल आप हारिस रऊफ की बात करते हैं, वो पाकिस्तान को 2 फॉर्मेट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं करंटली कैटेगरी बी में. इसी तरह बाबर आजम की आप बात कर लें, अभी करंटली टेस्ट फॉर्मेट ओडीआई में पाकिस्तान को मोहम्मद रिजवान टेस्ट ओडीआई 2 फॉर्मेट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो दे पार्ट ऑफ कैटेगरी बी. तो ये देखा जा रहा है कि किस प्लेस का किस तरह कितना इस्तेमाल करवाया जाएगा. सेकेंडली जो चीज़ देखी जा रही है रुहा जी, वो ये है कि कैटेगरी बी में जो प्लेयर्स हैं वो ए में इस वजह से भी नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त 5वां, 8वां और 7वां रैंक्ड है इन T20 ODI एंड टेस्ट क्रिकेट. तो आपको ये देखना है कि कितने मैचेस आपने जिताए, यानी पाकिस्तान कम्स फर्स्ट. एक इस चीज़ को इनकरेज किया गया. परफॉर्मेंसेज उठाई गई लास्ट ईयर से प्लेयर्स की और देखा गया कि कौन से प्लेयर्स सबसे ज़्यादा मैच पाकिस्तान को जिता सके, और एक इंसेंटिव दिया गया प्लेयरों को कि जो अब से सबसे ज़्यादा मैचेस पाकिस्तान को जितवाएगा, दोज पीपल विल एंड अप इन कैटेगरी ए. आई थिंक विच इज़ रियली गुड, राइट, बिकॉज नाउ रादर देन गोइंग फॉर इंडिविजुअल एक्colades, you are talking about the impact you're going to create for your team to win matches. I think which is a really good sign to see. I think and it's important as well कि ये चीज़ already set out हो गई है, but I do want to touch upon one thing कि आपके टेस्ट कैप्टन शान मसूद हैं और उनको कैटेगरी डी में शामिल किया जाता है. What message is this giving out? And is this a fair decision कि उनको डी में डिमोशन? इसमें अनफॉर्चुनेटली एक तो अनप्रेसिडेंटेड है इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड द पाकिस्तान. मैंने बाकी कंट्रीज़ के भी कॉन्ट्रैक्ट को देखने की कोशिश की, किसी में भी एक कैटेगरी के बगैर हमने नहीं देखा. इसके 2 रीज़न मुझे नज़र आते हैं. एक तो रीज़न ये है कि जैसे हसन ने कहा कि बड़ा क्लैरिटी से है कि अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, कंटिन्यूसली डिक्लाइन है इन ऑल फॉर्मेट्स, तो ये रीज़न है. दूसरा, एक कैटेगरी किन को दी जाती है? नंबर 1 कैप्टन, और दूसरा दिया जाता है जो तीनों फॉर्मेट खेलता है आपका. आगा विल बी थिंकिंग, साइमन यू विल बी थिंकिंग, ये 2 बंदे ऐसे हैं, या तीसरा अबरार भी आप कह सकते हैं, जो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं. आगा आपका T20 का कैप्टन है, नेक्स्ट मोस्ट लाइकली आपका ओडीआई का कैप्टन है, टेस्ट के ऊपर भी बात होती है, उसको कैप्टन होना चाहिए. ही विल बी थिंकिंग कि मैंने ऐसा क्या गलत किया, मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर है आपकी टीम का, तो आपने किन बेसिस के ऊपर, क्या बाबर रिजवान नाराज़ ना हो जाए, इस बेसिस के ऊपर उसको आपने उसको ए कैटेगरी में नहीं रखा. ये क्या माइंडसेट है? दूसरा पॉइंट ये है जो आपने क्वेश्चन किया कि शान मसूद को डी में रखा, जब बी में रखा था तो तब भी उसके आगे सब्जेक्ट टू कैप्टनसी लिख दिया. अब साउथ शकील को आप वाइस कैप्टन की बात कर रहे हैं, पूरा मीडिया 2 दिन से बात कर रहा है कि वो नेक्स्ट कैप्टन डिक्लेयर होने जा रहा है. आज पीसीबी की इस तरफ से स्टेटमेंट आई है कि ये सब स्पेकुलेशन है, र्यूमर है, हम अभी कोई कप्तान चेंज नहीं कर रहे, अभी इस पर हमारी मीटिंग ही नहीं हुई. तो पॉइंट ये है कि जब आप आगा को ज्यादती करेंगे, इसको बड़े अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती थी. इसमें लास्ट मेरा पॉइंट ये है कि आपको कैटेगरी करते जब बनाते, ए को भी रखते, ये 2-3 प्लेयर ईजिली ए में आ सकते थे. दूसरा, आपने एमर्जिंग कैसे ख़त्म कर सकते हैं? एमर्जिंग में आपके शहीन का एक लड़का भी नहीं है. इरफान खान नियाजी को कैसे आप मिस कर सकते हैं? फैसल अकरम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की, उसको आपने नहीं डाला.
तो आई ये थिंक ये कुछ बड़े अच्छे पॉइंट्स आपने रेज किए। जिस तरह आगा की आपने बात की, बिल्कुल कैटेगरी ये जनरली उन प्लेयर्स के लिए होता है। ये अभी हमने सेम प्रॉब्लम कॉनराड और साउथ अफ्रीकन बोर्ड के साथ भी देखी थी, उन जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। तो करंटली अभी जो पक्के आपको पता है प्लेइंग 11 में प्लेयर हैं वो सलमान अली आ गए हैं, उसके अलावा प्रॉब्ली साइम अयूब हाँ, है, वो ठीक है। बताइए साइम की भी इंजरी हो गई तो वो पूरा उस तरह खेल नहीं सके। तो हुआ क्या, 2023 में आपके कैटेगरी ए के प्लेयर को रोहा जी 45 लाख रुपया मिल रहा था, 2024 में तकरीबन 60 लाख रुपया उससे मिल रहा था और 10 लाख रुपया कैटेगरी डी वाले को मिल रहा था। दैट्स 6 टाइम डिफरेंस। तो अगर आपने एक एग्जांपल सेट करनी है, मुझे नहीं पता ये हुआ है कि नहीं, बट एक अच्छी एग्जांपल सेट की होगी। अब देखिए आप, वो कैटेगरी ए में कोई प्लेयर नहीं है तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्ट्स जब हैंड आउट होते हैं आपका टोटल पूल वही होता वही रहता है। वो टोटल पूल की अब बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन हुई है बी, सी और डी के दरमियान। तो आई थिंक इट्स बट बेटर। यहाँ पे आई डू गेट योर पॉइंट, Yeah. लेकिन जब पूरी दुनिया में टेस्ट क्रिकेट को हाँ. के लिए एक हम स्ट्राइव कर रहे हैं कि उसको Yeah. वापस वो मकाम उसका आए, स्पेशली जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इनके अलावा जो टीम्स टेस्ट क्रिकेट खेल रही हैं उनको भी अपने सिस्टम में टेस्ट क्रिकेट टेस्ट को को वो सबके- इम्पोर्टेंस देनी है, उसके स्टेटस को बरकरार रखना Yeah. है। गिवन दैट कॉन्टेक्स्ट, इट इज़ सरप्राइजिंग कि हमारे टेस्ट कैप्टन कैटेगरी डी में है। इट इज़, आई मीन, व्हाट मैसेज इज दिस गिविंग आउट कि टेस्ट क्रिकेट की हमारे यहाँ पे वो इम्पोर्टेंस नहीं है कि हम कप्तान जो कि सबसे इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं उनको एक बेहतर कैटेगरी में अवार्ड किया जाए? I think that's a very fair question. I don't know what other nations would be doing with a test captain who's just playing one format for their respective boards. He might be playing one But format, Shan but Masood he is playing across, the format. yeah, I mean across both seasons, Shan Masood deserved better. आप इसको तो ये कह सकते हैं बात। इन्होंने बात जिस तरह की सब्जेक्ट टू कैप्टनसी पिछले में भी लिखा गया, इस सीजन में भी, और उसकी वजह या उसका कसूर शान मसूद का भी नहीं है डायरेक्टली। उसकी वजह ये है कि वो भी यही बात करते रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी कि अगर हमें टेस्ट चैंपियनशिप में सीरीज मिल रही हैं तो हमें ज्यादा टेस्ट खिलाइए। हम होम सीरीज 2-2 मैचेस की खेलते हैं, ठीक है। अब उसमें एक इशू ये भी है, ऑब्वियसली क्राउड पार्टिसिपेशन भी इशू है, राइट्स का भी इशू है, आपकी टेस्ट क्रिकेट कितनी देखी जाती है वो भी इशू है। तो ये भी देखना पड़ेगा। और दूसरा, जिस तरह आपने कहा कि आपने तीनों कैटेगरीज में देखा 10-10 प्लेयर को कॉन्ट्रैक्ट मिले। अब इसमें कई प्लेयर हैं जिनके नाम मिसिंग है, मीर हमजा, मोहम्मद अली, आपने बात की कामरान गुलाम। इसका ये मतलब नहीं है कि वो पाकिस्तानी टीम को किसी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि अगर इतने आपके पास 30 प्लेयर तो आपने डाल दिए कॉन्ट्रैक्ट में, राइट। अब आपके पास और ज्यादा प्लेयर्स 45 हो 50 हो, आप सबका नाम तो नहीं कॉन्ट्रैक्ट में डाल सकते। बिल्कुल सॉरी, अब So यहाँ पे you'll हमारे have पास to miss out बिल्कुल on अब players. टाइम खत्म हो रहा है, और क्योंकि हम इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं, वी लव टू आल्सो हियर योर कमेंट्स ऑन व्हाट यू थिंक इज द राइट डिसीजन। कैटेगरीज की हम बात करें, डू यू थिंक एज फैंस के ये सही डिसीजन है कि आपके टेस्ट कैप्टन जो है वो कैटेगरी डी में है, एंड ऑल्सो आपके जो स्टार प्लेयर्स हैं उनमें से कोई भी कैटेगरी ए में नहीं है? अपनी जो कीमती राय है, अपनी ओपिनियंस है, ज़रूर हमसे शेयर करें अक्रॉस आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। यू कैन सी द लिंक्स ऑन योर स्क्रीन, ऑफ कोर्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, सब जगह पे पीटीवी स्पोर्ट्स जो है वो एक्टिव है, एंड वीड लव टू हेयर from you. Thank you so much, gentlemen, for your time. Really appreciate your analysis, and that's all we have for you.